Hello, my dear students. This is NH sir, welcoming you all to the moderator session. As many students requested, so please एक moderator session हमें चाहिए एक video बना दीजिए. So for them, please welcome to this moderator session. Student, in this video, I have discussed on various pointers like chapter-wise distribution, the marks, level of question paper, whether your question paper will be easy or medium or difficult level. Then we'll see the paper pattern. Then I have added a sample paper over here. Then with respect to my strategy, I have added a slide for time management. Then we'll see the marks distribution. Apart from that, I've added a slide having knowledge based question, understanding based question, application skill based question. Means what are the different way the questions are framed. Very important, we will be seeing the marking scheme. Okay, that will be the main root of this moderator session. After marking scheme, then we'll go with the important pointers for MCQs, for very short answer, for all the sub questions which you will be facing in this board exam. So let's start with the very first slide, that is chapter wise marks distribution. Student, in this slide you can see that your entire chemistry paper that you are going to write for 70 marks. Okay, so you are going to write this paper for 70 marks, out of which you'll be having 26 marks for the physical chemistry, 17 marks for the inorganic chemistry, 18 is for organic chemistry, and we have 3 plus 3 plus 3, 9 marks for the applied chemistry. So as you can see, this is the column where you can see the weightage of the marks without option. बट जो आपका एक्चुअल पेपर बनता है वो बनेगा 98 मार्क्स का, 98 मार्क्स का बनेगा. So that means you are getting a question for 38 marks in physical chemistry, 23 marks in the inorganic chemistry, 25 marks for the organic, and 12 marks for the applied chemistry. Okay, so this is the column where you can see the weightage, okay, with the option. So student, let's say you are not very good in organic chemistry, as I have seen, okay, with respect to my experience. If you are not very good in organic chemistry because you are having n number of chemical reactions, in that you have to remember, you have to mug up all that conditions, temperature, catalyst, okay, pressure. So it is quite difficult when a student saying sir organic chemistry बहुत difficult लगता है, because yes, in physical chemistry you can see we have theory topic, in inorganic chemistry we have theory topic, applied chemistry theory topic. So student, by doing physical, inorganic and applied chemistry, you can score a better mark. How you can score a better mark? Here you can see, though your paper is for 38, correct? I hope you can see the pointer. Your paper is for 38, okay, physical chemistry is for 38. So it is like you can focus more on physical chemistry. So what I can say is, by studying this sixth topic you can score 38 over here. Inorganic chemistry is like a T20. How T20? We have only three topics, that is chapter number 7, 8 and 9, and by only studying this three topic you can get easily 23 marks. Suppose आपने physical और inorganic chemistry ही पढ़ा, okay, you have not touched organic chemistry, you have not touched applied chemistry. So 38 plus 23, student, you are getting a good percentage, right? But the thing is, if you are only focusing physical chemistry and inorganic chemistry, that means you have to learn, you have to by heart each and every single line of your chemistry textbook. उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दो पॉइंट यहाँ से छोड़ देता हूँ या एक दो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देता हूँ, नहीं. ओके, इफ़ यू आर वेरी फर्म कि हाँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर ले जाऊँगा, ओके, और ऑर्गेनिक मुझसे नहीं हो रहा है,
तो चलेगा, बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपको एकदम पक्का कर लेना। अभी तक अगर आपने केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, लेट्स से देयर आर फ्यू स्टूडेंट उन्होंने कुछ नहीं स्टार्ट किया है, स्टूडेंट मैं उनसे बोलूँगा आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के कंप्लीट कीजिए, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सिर्फ 3 चैप्टर आपको 23 मार्क्स देंगे। हाँ, इसमें केमिकल रिएक्शंस है, बट ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जैसे डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, सो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, एंड अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास 8 से 10 घंटा मिल रहा है तो आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ऊपर आपने पढ़ लिया 38 मार्क्स का, 23 मार्क्स का, विच यू आर गेटिंग एज 61, और नीचे आपने पढ़ लिया 12 मार्क्स का। तो डोंट यू फील दैट आउट ऑफ 70 मार्क्स पेपर यू कैन ईजिली स्कोर 60 प्लस मार्क? ठीक है ना। तो देखिए, खाली मेरा मॉडरेटर सेशन अटेम्प्ट करने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर साइड स्टूडेंट, आपको आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको लिख कर प्रॉपरली केमिकल रिएक्शंस हो गए या डेरिवेशंस हो गए, आपको लिख कर प्रैक्टिस करने होंगे, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। ऐसा नहीं है कि खाली मॉडरेटर सेशन बैठ गया और मेरे को मार्क्स आ गए। नो, मैं आपको आपके जो केमिस्ट्री पेपर है उसको मैं थोड़ा सा ईजी बना कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे इजी हो गया? सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑर्गेनिक टच भी नहीं किया, यू आर गेटिंग मोर देन 60 मार्क्स आउट ऑफ 70। प्रैक्टिकल में आपको 30 मिल गए, चलो 30 नहीं मिला, 25 मिल गए, स्टूडेंट यू आर गोइंग बियॉन्ड 90, करेक्ट? सो स्टार्ट स्टडिंग। अगर आपने नहीं किया है, इनऑर्गेनिक सबसे पहले कंप्लीट करो, फिजिकल कंप्लीट करो, अप्लाइड करो, और अगर समय मिलता है एट द एंड तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 या 2 टॉपिक कर लो। सर 1-2 टॉपिक कौन सा करें, ये आपके ऊपर है, आपको जो ईजी लगे वो करो। अगर कुछ को लगता है कि सर आप ही बता दीजिए कौन सा ईजी है, तो मेरे हिसाब से हैलोजन डेरिवेटिव्स ईजी है, मेरे हिसाब से अल्कोहल फेनॉल ईजी है। ठीक है, अब आपका ये सवाल होगा, सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हैलोजन ईजी है या अल्कोहल फेनॉल ईजी है? क्योंकि अगर आप इसके PYQs देखोगे ना, तो रिपीटेड वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। सो देयरफॉर माय रिक्वेस्ट to first complete inorganic, then physical, and then applied chemistry. And after completing applied, आप ऑर्गेनिक के पहले 2 चैप्टर कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपका 60 प्लस मार्क्स नहीं आया तो आप मुझे बोलना। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस वाज द चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, in this next slide we will be seeing the level of question paper. As discussed, स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो डिफरेंट लेवल पे बनाया जाता है, जैसे कि नॉलेज बेसिस, अंडरस्टैंड बेसिस, देन स्किल्स एंड एप्लीकेशन। अभी जो नॉलेज बेसिस के क्वेश्चंस है वो 29 मार्क्स तक के फ्रेम किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिस के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, वो 41 मार्क्स के फ्रेम किए जाते हैं, और अप्लाइड और स्किल बेसिस पे 28 मार्क्स। अब सर नॉलेज बेसिस मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेसिस मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दैट आई हैव डिस्कस इन द फर्दर पार्ट ऑफ माय PPT. So please do connect it till the end. Next, difficulty level of the question paper. If you will see the difficulty level, student, easy type के क्वेश्चन 29 मार्क्स के आते हैं। एवरेज जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो 49 मार्क्स के आते हैं, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ठीक ठाक भी स्टडी किया है तो स्टूडेंट यू कैन ईजिली स्कोर आउट ऑफ 60 प्लस मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ओके भाई, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज chapter wise, it is the weightage as per the type of question. Weightage, so here you can see you are having, so this is nothing but it is coming about to your paper pattern. तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQs टाइप होंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। ओके, सी द फर्स्ट दिस कॉलम, ओके, एंड देन सी द फाइनल द लास्ट वाला कॉलम। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन।
So here we have MCQs for 10 marks. Then we have very short answer for 8 marks. Then we have essay 1, that is short answer 1 for 24 marks. Then essay 2 for 36 marks. Then we have LA long answer for 20 marks. तो आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 98 मार्क्स का बनेगा, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है. ठीक है. अगर आप मिडिल वाले कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं ये बताया गया है कि भाई एमसीक्यूज में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे. यू कैन सी TEN written there. VSA वेरी शॉर्ट आंसर 8 क्वेश्चंस आएंगे. SA1 12 क्वेश्चंस आएंगे. SA2 12 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, एंड इन LA वी हैव 5 क्वेश्चन. तो ये आपको सभी क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, डेफिनेटली इनके भी कुछ ऑप्शंस हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेपर पैटर्न. तो स्टूडेंट, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस को फॉलो करके बनाया जाता है. जैसे कि अभी आपको मैंने बताया चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर. तो आपके जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो उस वेटेज के हिसाब से बनते हैं. हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है. हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो आप लोगों का जो वेटेज का जो मैंने ऊपर वाला स्लाइड बताया, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ उस तरीके का बनाया जाता है. सो लेट्स कम टू दी पेपर पैटर्न. So student, your question paper is having 4 sections, section A, B, C and D. In section A, we have question number 1 and question number 2. In section A, we have question number 1, that is, we have MCQs. Okay, we have total 10 MCQs, 1 to 10, and it is for 10 marks. Now student, here 2 numerical type question will come. Okay, in section A, you can see 2 numerical written. That means 2 numerical type question will be there. Okay. Similarly, in section A only, we have one more question, question number 2, which is answer the following, and we have question number 1 to 8. And here also each question is for 1 mark. As you can see here, it is written 8. So each question is for 1 mark. And here one numerical type question will be there. Okay, on the above question number 1, 2 numerical would be there, and in this sub question 1 numerical will be there. Coming to the next section B, we have total 12 questions. As you can see, question number 3 to question number 14, that means we have total 12 questions, and out of 12 you have to attempt only 8 question, any 8. So whichever 8, फर्स्ट के 8 अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट के 8 अटेम्प्ट करने हैं, स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट करके लास्ट के कुछ अटेम्प्ट करने हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. ठीक है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 8 नहीं मुझे 12 के 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन एकदम एंड में अटेम्प्ट करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं. ठीक है. नाउ इन दिस सेक्शन बी 2 numerical type question will be there. Okay, coming to section C. Section C, again we have 12 questions, that is question number 15 to question number 26, you can see. And here also we have 12 question, and out of 12 you have to attempt any 8 questions. Okay, this section C is having little longer questions, SA2. Okay, so here each question is for how many marks? 3 marks. So 3 into 4 3 into 8 gives you 24. Okay, whereas in previous section B, each question is for 2 mark. So 2 into 8, that gives you 16. Whereas here we have to attempt 8 question, and 8 into 3, each question is for, in section C, each question is for 3 marks, so that gives you 24. Coming to the next section, section D, and here we have only 5 question, and this is LA, means each question, long answer, each question is for 4 marks. And here also you can see one numerical type question will be there in each sub question, and that numerical will be only for 2 marks. So here we have to attempt any 3 question, each question is for 4 mark,
So 4 3s are 12. So 12 marks you will be getting over here. So if you will see, the numerical type question will be there minimum for 12 to 15 marks. अगर आपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को किया पढ़ा तो आपको 12 से 15 मार्क मिलेंगे. और स्टूडेंट ये जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है. देयर इज नो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर इज नो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इन अप्लाइड केमिस्ट्री. मोस्टली फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. So here also you can see this is the actual board paper pattern. Okay, ये तो हमने ऐसे ही बनाया है, but यहाँ पे देखिए this is the actual board paper pattern. Okay, where you can see again the paper format, that is timing, it's for 3 hour, then total marks is for 70. We have 4 sections, section A, B, C and D. You can see on the screen. In section A we have 2 questions, question number 1 and 2. Question number 1 is nothing but it is MCQs type question. It is 1 mark each, that gives you 10 mark. Question number 2 is your very short answer. We have total how many questions? It is written 8 questions and you have to attempt that 8 question for getting it. So it's a 1 marks each, you will get 8 marks. Now one more thing I want to add here. Section A is a compulsory type questions, means there is no option given, है ना. आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मिलाकर. दैट इज इन सेक्शन ए वी हैव टोटल 18 क्वेश्चन. सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 18 क्वेश्चन. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन बी, we have total 12 question, that is question number 3 to 14. We have total 12 sub question in 12 question which is of short answer one type and that carries 2 marks each. But you have to attempt how many? Out of 12 you have to attempt 8. Correct? So 8 into 2 gives you 16 marks over here. In section C, again we have question number 15 to question number 26. Again we have 12 questions and each question is for how many marks? Correct, it is for 3 marks. And 3 into 12 gives you 24. Sorry, 3 into 8 gives you 24. Moving to the next, section D. In section D we have total 5 question. Out of 5 you have to attempt only 3 and each is for 4 marks, so 4 3s gives you 12. Okay student, now here we have given point number 5, that is you can use log table, you cannot use calculator or scientific calculator at the time of exam. Okay, figures to the right indicate full marks. So whenever you are writing any numerical, so your answer, your figure should be correct. Even when you are writing any question sub question, so do write question number properly. आप अटेम्प्ट जो आंसर कर रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखो. क्वेश्चंस नहीं लिखना है बट क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है. ओके. एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग एमसीक्यूज, दिस पॉइंट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी एमसीक्यूज तो आपको ABCD जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऑप्शन लिखना ज़रूरी है और आंसर भी लिखना ज़रूरी है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज है और फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है वाटर और उसका ऑप्शन है बी, तो आपको बी लिखना है, उसके साथ वाटर भी लिखना है. सो यू विल बी राइटिंग बोथ द ऑप्शन नंबर एज वेल एज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Okay, and some physical constants will be given, like the value of R would be given or whatever the values is required in your question paper, so accordingly they will give you. Moving to the next student, very important, time management. ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है. ठीक है, कि एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगना चाहिए तो मैंने उस हिसाब से बनाया है. आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. तो जैसे आपने देखा कि हमारे पास MCQs होते हैं, वो 10 क्वेश्चंस होते हैं. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया है दैट वी हैव टोटल 180 मार्क्स पेपर फॉर 180 minutes paper and that is for 70 marks. So that means 1 marks for
Okay, 1 marks is equals to minimum 2.5 minutes approx. So accordingly एक MCQs को लिखने के लिए 25 मिनट लगना चाहिए, बट आई फील 15 मिनट में MCQs किया जा सकता है. देखिए आपको क्या लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चंस कॉपी तो नहीं करना है. ठीक है, डू नॉट कॉपी क्वेश्चंस ऑफ MCQs इन योर आंसर शीट. आपको करेक्ट आंसर लिखना है, करेक्ट ऑप्शन लिखना है, दैट्स इट. तो 10 MCQ लिखने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, बट फिर भी एक न्यूमेरिकल आ गए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है, और कैलकुलेशन की वजह से आपका टाइम बढ़ जाता है ना, एक दो न्यूमेरिकल आ गए तो. सो देयरफॉर आई हैव गिवन 15 मार्क्स. तो आपका पेपर स्टार्ट होता है शार्प 11 AM, राइट. तो 11 से 11:15 तक आप अपने टाइमर को इस हिसाब से सेट कर दीजिए कि आपके जो सब क्वेश्चन है उतने समय में ख़त्म हो जाए. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टार्टेड एट 11, सो इन 15 मिनट, है ना, नॉट इन 25 मिनट, इन 15 मिनट आपको, दैट इज 11:15 तक आपका MCQs हो जाना चाहिए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर जो 1 मार्क्स का आता है, उसको लगता है विद रेस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन उसको लगता है 20 मिनट्स, बट अगेन 8 क्वेश्चन ही है, बहुत कम क्वेश्चन है, तो इसको भी अगर 15 मिनट्स भी दिया तो इट इज इनफ. तो आपका जो नेक्स्ट VSA है वेरी शॉर्ट आंसर, वो आपका 11:30 तक हो जाना चाहिए. सो आधे घंटे में आपका सेक्शन A कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आधे घंटे में अपना सेक्शन है. देखिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. केमिस्ट्री पेपर लेंदी होता है. सपोज आपको पूरे क्वेश्चंस आते हैं, आप कितने लेंथ तक लिखोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो टाइम मैनेजमेंट करके लिखोगे तो आप हर एक सब क्वेश्चंस को टाइम दे पाओगे, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा, मार्क्स चले जाएगा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी. सेक्शन बी में हमारे पास है 2 marks question. We have to attempt only 8 questions out of 12 correct, so that gives you 16 marks, right. उसको लगना चाहिए 40 मिनट्स. अगर आपने 40 मिनट्स दिया तो भी चलेगा, बट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 30 मिनट्स में इजीली कंप्लीट किया जा सकता है. ठीक है, जितने पेपर्स मैंने देखे हैं, किए हैं, सॉल्व किए हैं, तो मेरे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से या एक विथ रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू 30 मिनट्स में वो हो जानी चाहिए. तो कोशिश कीजिए कि भाई 12 बजे तक आपका सेक्शन ए सेक्शन बी हो जाए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन नंबर सी. हियर it is a 3 mark question. Again we have 12 questions given, you have to attempt only 8. तो इसे लगता है अराउंड 60 मिनट. ठीक है, बट मैंने देखा है कि ये 60 मिनट में इजीली कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है. विथ रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग, सेक्शन सी में 1 घंटे में ये कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा, एक 10 मिनट से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है. तो अगर आपने उसको 70 मिनट्स भी दिया, मतलब 1:10 में आपका सेक्शन सी ये भी कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, तो आपने 11 बजे स्टार्ट किया, 11 से 12 आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, और सेक्शन सी, बिकॉज स्टूडेंट सेक्शन सी लेंदी है, आप मार्क्स भी तो देखिए 24 मार्क्स का है, बाकी सभी सेक्शन का कंपेयर कीजिए, सभी का कम है, राइट. इसका 24 मार्क है, तो इससे डेफिनेटली भाई टाइम तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा. तो आपने 1 hour 10 minutes दिया तो इट इज़, सॉरी, आपने 70 मिनट्स दिया तो इट इज़ इनफ. तो अब आपके घड़ी में बज गए हैं 1:10. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन डी में. सेक्शन डी जो लास्ट सब क्वेश्चन है, जहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3, राइट. 3 4s are 12. तो जिसे देना चाहिए हमें 30 मिनट्स, बट बिकॉज ये भी थोड़े से लेंदी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो सेक्शन सी और डी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी होते हैं. ठीक है, तो आपको उसे हल्का सा ज़्यादा मिनट देना है, दैट इज़ इफ़ यू विल गिव अराउंड 40 मिनट, 30 मिनट में हो गया तो बहुत अच्छी बात है. 40 मिनट दोगे तो इट इज़ प्रॉपर एंड इनफ.
तो अब आपके घड़ी में बज गए हैं 1:50। अभी भी आपके पास 10 मिनट है और उस 10 मिनट में आप एक बार देख लीजिए कुछ एमसीक्यूज छूट गए हैं क्या, यूनिट्स आपने प्रॉपर लिखे हैं क्या, वेरी शॉर्ट आंसर चेक कर लीजिए उसमें प्रॉपर चीज़ों को लिखा है क्या। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी क्वेश्चन पेपर अपनी जो आंसर शीट है उसको चेक कर लीजिए, कहीं यूनिट्स तो नहीं भूल गया है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 और 2 लिखना कहीं भूल गया है क्या, एरो के ऊपर कंडीशंस लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, तो आप ये सब चीज़ें एक बार रीचेक कर लीजिए, जिसको आपको 10 मिनट देना है तो आपका 2 बजे पूरा पेपर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट विच आई हैव फ्रेम्ड, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर एक सेक्शन को समय दे पाओ। अगर आपने बहुत कम ही पढ़ा है, आपको आता ही नहीं है, बहुत कम से क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट का जो चार्ट है वो बना लीजिए, ठीक है। और जिसने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन किया है, ठीक है भाई, आउट ऑफ 16 चैप्टर्स आपने एक 15 चैप्टर या एक 14 चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट जो है ना आपको मैनेज करना होगा। नहीं तो क्या होगा, आपको कोई एक सेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप क्या करोगे, उसको है ना सॉल्व करते रहोगे एकदम आराम आराम से, तो फिर टाइम निकल जाएगा और फिर बाकी सेक्शन में आप अटक जाओगे। सो देयरफॉर टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भागना है, रन करना है केमिस्ट्री पेपर में, ठीक है। पेपर छोड़ के नहीं भागना है, पेपर है ना, पेन को आपको भगाना है पेपर पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच सब क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है कि भाई 10 MCQs है, तो इसमें ये बताया गया है कि भाई नॉलेज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ 10 3 क्वेश्चंस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेसिस में 4 क्वेश्चंस आएंगे, अप्लाइड एंड स्किल में 3 टाइप के क्वेश्चंस। तो यही चीज़ों को देखकर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ठीक है। You can take the screenshot of this, you can take the screenshot of all the slides which you have got over here, okay, VSA then SA। तो आते कितने क्वेश्चंस है, उसमें से नॉलेज टाइप के कितने क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेसिस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, अप्लाइड एंड स्किल। अच्छा, अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, सर नॉलेज टाइप क्वेश्चंस मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, राइट। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो उसी पे बेस्ड है। तो आते हैं सर व्हाट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉलेज बेस में आपका ज़्यादा करके होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आया डिफाइन दिस, लाइक फॉर एग्जांपल डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको सीधा डिफिनेशन लिखना है ना। व्हाट इज डिफाइन क्रिस्टलाइन solids, define amorphous solid. So you will not put your own words and explain. Definition is always something which is there given in your textbook, that is definition. और कौन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए, स्टेटमेंट और स्टेट द लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, राउल्ट्स लॉ, स्टेट हेनरीज लॉ, है ना, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। और कौन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक राइट द केमिकल फॉर्मूले फॉर, like for example write the chemical formula for hematite ore, bauxite ore, are you getting me, chalcopyrite ore, write the chemical formula for sulfurous acid, perchloric acid, hypochlorous acid। I hope you have understood। okay, नीचे भी दिया हुआ है write the name and the formula of the ore। okay, so write the name and the formula of iron ore, zinc ore, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देन डायरेक्ट क्वेश्चंस और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर या यूरोपियम, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। तो ये सब होते हैं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आता है, ठीक है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द
derived equation of first order of kinetics, zero order of kinetics. ओके, तो ये सब हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, या फिर यहाँ पे राइट, वॉट या नेम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम भी किए हैं, आप देख लीजिए. एक्सप्लेन फ्रेंकल डिफेक्ट, तो एक प्रॉपर डायग्राम बनाओगे और उसको एक्सप्लेन करोगे. तो ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, दे आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, व्हाट आर मिक्स्ड ईथर, राइट वन एग्जांपल. ओके, write the mathematical expression for first order chemical reaction. So it is the question from chemical kinetics. Then or and formulae से questions आता है. write the chemical formulae for chalcopyrite, magnetite, है ना, limonite, siderite, pyrite, iron pyrite, बहुत सारे. So आ गया knowledge based question, समझ में आ गया. Moving to the next, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अपना वहाँ पे लगाना है, क्वेश्चन को समझना है और उसका आउटपुट देना है. लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, उसका यूपीएससी नेम लिख दो. ठीक है, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइप क्वेश्चन आएगा. डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड isothermal process, distinction between order of reaction and molecularity of a chemical reaction, right? ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए. देन डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, आपको तो पता ही है कितने सारे डेरिवेशन अपने बुक में दिए हुए हैं, तो सभी डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट? थर्मोडायनेमिक में है, सॉल्यूशंस में है, ओके, काइनेटिक्स में है. सो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे. देन एक्सप्लेन द टर्म, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. भाई कोई एक टर्म दिया है, उसे एक्सप्लेन करो, है ना. देन कंप्लीट द रिएक्शन फॉर, कंप्लीट द रिएक्शन, कोई रिएक्शन देंगे ए बी, उसमें फाइंड आउट करना होगा. जैसे अब यहाँ पे देख लोगे, अभी सेकेंड हाफ में मैं आपको दिखा दूंगा, ओके, देख लीजिएगा. देन वी हैव क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस. क्लासीफाई दिस सॉलिड इनटू ए एंड बी, तो कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, आपको क्लासीफाई करना होगा. देखिए यहाँ पे जैसे कि सब क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं ऑन द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो एक दो कंपाउंड दिया होगा, ए और बी, पूछेगा भाई ए ऑप्टिकली एक्टिव है या बी, तो आप क्या लगाओगे उसमें अपना अंडरस्टैंडिंग. भाई कायरल कार्बन चेक करोगे, इन दोनों में से कायरल कार्बन किस पे है. अच्छा, तेरे पास कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है. समझ में आ रहा है. फिर मैंने बोला डिराइव टाइप क्वेश्चन आएंगे. सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क. किया है कि नहीं डेरिवेशन प्रेशर वॉल्यूम वर्क का. W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. देन डिस्टिंक्शन टाइप क्वेश्चन मैंने बताया, तो SN1 SN2 का पूछ ले. और भी मैंने डिस्टिंक्शन बिटवीन तो मैंने ओरली आपसे डिस्कस की है, दैट मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर. देन डिस्टिंक्शन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, है ना. देयर आर सो मेनी डेफिनेशन गिवन इन योर बुक, प्लीज डू ऑल दैट. देन explain the primary structure of protein, draw the structure or explain the structure of protein, है ना. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. या फिर मैंने बताया यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है ना. सो व्हाट इज ये भी पूछा जा सकता है, भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपीएससी नेम क्या है. ठीक है. देन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है या फ्रेम किया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, okay, of this complex. Okay, so what is the oxidation number of metal in this complex. So यहाँ पे जो metal ion platinum यूज किया है, उसका oxidation number क्या है. so this is just the question which I have framed कि understanding based में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. coming to the next, application and skill based question. तो यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, न्यूमेरिकल आते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जिसमें गिवन डायरेक्टली दिया नहीं होता है, तो अपने को अपना नॉलेज, भाई अपना दिमाग लगाना चलाना होता है वहाँ पे. ठीक है. सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये आपसे मैं आगे डिस्कस करूंगा. सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट दिया है, ए फाइंड आउट करो, ए में बी डाल दिया तो सी फाइंड आउट करो, सी में ये वो डाल दिया तो डी फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई ए बी एंड डी, ऐसे करके आएंगे. ठीक है, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, आगे डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट. देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ
ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर आपने अप्लाइड केमिस्ट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड, देयर आर सो मेनी, ठीक है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो एक ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिए भाई, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये हायर लेवल। अभी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया डायरेक्टली आप उसका नहीं स्ट्रक्चर बना दोगे, पहले आप उसको चेक करोगे भाई वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, वीबीटी थियरी अप्लाई करके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चल जाएगा कि भाई वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है ना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा व्हेन आई विल गेट द टाइम। So here I have framed few question based on application and skill based. Like ROH is an alcohol, reacts with PCl3 gives you A, and A reacts with KCN gives you B, and B reacts with hydrogen in the presence of sodium gives you C. तो क्वेश्चन है predict or identify A, B, C in the above reaction. समझ में आया? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, देख रहे हो सेकंड पॉइंट यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ये वाला, तो वही है ये सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। जो ये ROH रिएक्ट्स विद PCl3 है ना, तो A बना, A फिर B बना, B से C बना, तो व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, ये प्रोडक्ट आपको बताना होगा। तो ये थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक में, ओके, सोल्यूशन एंड काइनेटिक्स, इसमें सब बड़े बड़े न्यूमेरिकल है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। टेक्सचुअल के जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो भी अच्छे से कर लेना। देन आई वाज आस्किंग ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन पेंटाफ्लोराइड BRF5, ओके। सिमिलरली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO8 H2 है ना SO5। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एंड डू नॉट डू ओनली द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन इन माय PPT, है ना, ऐसा नहीं ये PPT से क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके बोर्ड में, ठीक है। जो आप अपने टेक्स्ट बुक से कर रहे हो भाई वही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल, एक नमूना मैंने आपके सामने रखा है। नाउ स्टूडेंट प्लीज ऑल ऑफ यू सी द मार्किंग स्कीम। अगर किसी ने वीडियो स्किप किया है तो दोस्तों को बोलो कम से कम मार्किंग स्कीम वाला पार्ट देख ले। क्यों मालूम है? क्योंकि मार्किंग स्कीम में मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं जो किसी मॉडरेटर सेशन में नहीं डिस्कस किए गए हैं। आप यूट्यूब पे चेक कीजिए पहले, मॉडरेटर सेशन किसी ने बनाया है क्या? नहीं है, है ही नहीं। और उसमें मार्किंग स्कीम मिल जाए मतलब ये तो लॉटरी है बेटा आपके लिए। देखिए मार्किंग स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोग ये गलती करते हो और आपके मार्क्स कम होते हैं और आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए मार्किंग स्कीम, देखिए कोई कुछ नहीं देखा है, स्टूडेंट्स को बोलो भाई मार्किंग स्कीम देख ले, ठीक है, वीडियो में। तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहले आते हैं भाई MCQs में। देखिए जब पेपर करेक्शन किए जाते हैं तो हम कौन से पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं पेपर करेक्शन करने के लिए, जैसे कि MCQs पे आते हैं। सबसे पहले तो MCQs में अगर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बच्चे ने 4 बार अटेम्प्ट किया है तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट होता है वही चेक किया जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ MCQs विल बी करेक्टेड। एग्जामिनर जब पेपर करेक्ट करता है तो आपने एक ही MCQs को 4 बार लिख दिया, एक में A लिख दिया, एक में B लिख दिया, एक में C लिख दिया, एक में D लिख दिया, और आप सोचते हो हम बहुत शाणे हैं, हमने तो चारों लिख दिया, अब जो करेक्ट है वो सर मार्क्स दे देंगे, टीचर मार्क्स दे देगा। बेटा ऐसा नहीं होता। अगर आपने 4 बार लिखा है, और ऐसा बहुत बार हुआ है स्टूडेंट, बहुत बार पेपर करेक्शन में हमने देखा है, सीन दैट स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन 4 टाइम, है ना, एक जगह A B C D अलग अलग लिख के दिया। सो विल नॉट करेक्ट ऑल दी आंसर्स, जो सबसे पहला देखते हैं, है ना, बस उसी को करेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने किया है बस उसी को ही करेक्ट किया जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट को हम टच ही नहीं करेंगे। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
अवॉइड ओवर राइटिंग और चेंजिंग द आंसर। कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यूज हमने लिख तो दिया, अपने को अब ऐसा लग रहा है नहीं सर ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर जो है वो दूसरा होगा। ठीक है, तो आप कट करके बोलो कि भाई मैं फिर से लिख दूं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोच समझ के आंसर लिखना है। इफ़ यू फील फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेंसिल से आंसर लिख लो, ठीक है, और फिर जब एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए 100% कि भाई हाँ ताला लगा दे अभी, तो आप जो है फिर पेन से आप पेन डाउन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप एक बार जो एमसीक्यूज आपने लिख दिया इसको फिर से दोबारा कट करके कोई दूसरा आंसर ना लिखे। ठीक है, राइटिंग आंसर विथ इट्स ऑप्शन इज मैंडेटरी। जो आपको मैं बता रहा था एमसीक्यूज में, सपोज फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी है और जिसका आंसर है वाटर। ठीक है, सपोज फर्स्ट एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर है बी, और जिसका आंसर है H2O, वाटर H2O। ठीक है, तो आपको बी लिखना भी ज़रूरी है, वाटर लिखना भी ज़रूरी है। यू हैव टू राइट बोथ बी एज वेल एज वाटर। आप सिर्फ बी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपने सिर्फ H2O लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको दोनों लिखना है। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? प्लीज़ ये ध्यान रखना कि आपको ऑप्शंस और आंसर दोनों लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है कि you have to write options as well as correct answer, then only you will get full marks, otherwise zero। और ये जो MCQs होता है, MCQs में ऐसा नहीं होता है कि भाई आधा मार्क्स मिल जावे। ठीक है, अगर आपने पार्शियल आंसर करेक्ट लिखा है, बेटा मिलता है तो पूरा 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर गलत है तो नो हाफ मार्क्स सिस्टम, डायरेक्टली यू विल गेट 0। अगर आपका आंसर पार्शियली करेक्ट है, बोलोगे सर आधा करेक्ट है आधा रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं होता। आपको मिलेगा तो पूरा 1, नहीं तो मिलेगा 0। और जैसा मैंने आपको बताया बेटा, 2 न्यूमेरिकल विल बी देयर इन दिस MCQs part। Moving to the next is VSA, very short answer, है ना। very short answer is just next question, question number 2। ये भी सेक्शन A का पार्ट है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो उसके आंसर्स बहुत बड़े नहीं आएंगे। योर आंसर मस्ट बी इन शॉर्ट, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 लाइन्स में आपको अपना आंसर एंड करना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। कई बार किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पसंद आ जाता है तो वो एकदम एलाबोरेट करने लगता है। अरे भाई ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शॉर्ट क्रिस्प लिख दो, बात ख़त्म। हाँ, आंसर प्रॉपर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बट एकदम आप उसे एनहांस, एकदम इलाबरेट अप टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो लिखा है बस उतना ही लिखिए। डू नॉट इलाबरेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें डायग्राम टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। ठीक है, सो ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली, लेबलिंग प्रॉपर करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया भाई, राइट द यूजेस और एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर अभी लिखा है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ हीलियम, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें प्रॉपर लिखा है 2 यूजेस, और आपको सपोज उसके 10 यूजेस आते हैं तो आप 10 यूजेस नहीं लिखोगे, आपको 2 यूजेस लिखने हैं, वो करेक्ट होने चाहिए, दैट्स इट। डू नॉट unnecessarily waste your time in this question because this question carries only 1 marks each। ठीक है, और मार्किंग स्कीम में यहाँ पे में मिलेगा आपको 1 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आपने एकदम प्रॉपरली करेक्टली लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कह रहे हो सर पार्शियल आंसर करेक्ट है और लास्ट के फाइनल चीज़ें रॉन्ग है, तो उसमें आपको 0 मिलेगा। यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर और इनकम्प्लीट। हाफ मार्क्स का कोई सिस्टम नहीं है सेक्शन 1 में, दैट इज सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको हाफ मार्क्स का सिस्टम नहीं है। ओके, एंड हियर ऑल्सो 1 न्यूमेरिकल विल कम। आई होप द मार्किंग स्कीम इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Okay student, moving to the next, मार्किंग स्कीम फॉर SA1 एंड मार्किंग स्कीम फॉर SA2. देखिए मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने सिर्फ यहाँ पे SA1 और SA2 लिखा है, बट मार्किंग स्कीम दोनों के लिए लगभग सेम ही है, एप्लीकेबल दोनों के लिए एक ही है. जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे फॉर SA1, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आंसर पूछा गया है तो मिनिमम आप 4 पॉइंट लिखोगे फॉर गेटिंग 2 मार्क्स. आपको पता है ना, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये सेक्शन बी है, and SA1 is for 2 marks. So here you will be getting 2 marks when you will write minimum 4 point of that question. अब कई बार आपको कोई पॉइंट ही नहीं याद आ रहा है तो आप वही पॉइंट को घुमा फिरा के लिख दोगे, ये भी नहीं चलेगा. 4 पॉइंट शुड बी डिफरेंट एंड शुड बी करेक्ट. अगर आपको आ ही नहीं रहा है तो छोड़ दो, क्या करोगे, बट ट्राई टू गेट कि आपको आ रहा है और आपने एक ही पॉइंट लिखा या 2 ही पॉइंट लिखा. कुछ अदर बोर्ड के स्टूडेंट लाइक महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं, कुछ CBSE IB बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये फील होता है कि भाई हमने 2 पॉइंट लिख दिया, 2 मार्क्स मिल जाएगा. ओके, तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, आपको 2 मार्क्स चाहिए तो ये स्टेट बोर्ड का रूल है कि आपको 4 पॉइंट्स लिखने होंगे. ठीक है, दिस इज़ नॉट द IB बोर्ड जहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए 2 पॉइंट के. ओके स्टूडेंट, each point carries half marks. Moral of the story, each point carries half mark. Draw the diagram wherever it is required. क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखा है भाई डायग्राम बनाना है तो आपको डायग्राम बनाना होगा. ठीक है, लाइक शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकल इफेक्ट के टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो आपको डायग्राम बनाना होगा. ठीक है, यहाँ पे जब न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 स्टेप वाले न्यूमेरिकल आते हैं. न्यूमेरिकल में एक चीज़ मैं बता दूं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपके ये सभी पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए. दैट इज़ न्यूमेरिकल में आपको गिवन डेटा लिखना है, देन फॉर्मूले लिखना है, सब्स्टिट्यूशन लिखना है, कैलकुलेशन लिखना है, करेक्ट आंसर और उसके प्रॉपर यूनिट लिखने हैं फॉर गेटिंग द एंटायर मार्क्स. एंड दिस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट इज एप्लीकेबल फॉर SA1 एज वेल एज SA2. ये SA1 SA2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ओके स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे जो SA1 वाला है वो 2 मार्क्स के लिए आएगा और SA2 में इट विल कम फॉर 3 मार्क्स. तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू 3 मार्क्स. That is half marks you will be getting for writing the data, then half marks you will be getting for formulae, then half marks for substitution, then calculation. अगर यही 2 मार्क्स के लिए पूछे जाए तो 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना है, प्लीज मेक अ नोट. फॉर्मूले आपको लिखना है, सब्स्टिट्यूशन लिखना है, करेक्ट आंसर और करेक्ट यूनिट लिखना है. आर यू गेटिंग मी? ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन करना होगा बट उस कैलकुलेशन का आपको मार्क्स आंसर में मिलेगा और यूनिट में मिलेगा. फिर से कह दे रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन SA1 के लिए पूछा जाए तो स्टूडेंट व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल राइट द फॉर्मूले, यू विल राइट सब्स्टिट्यूशन एंड यू विल राइट द आंसर विद द प्रॉपर यूनिट. दैट्स इट. आई होप दिस न्यूमेरिकल पॉइंट इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन पॉइंट. डिस्टिंक्शन पॉइंट में मैंने देखा है भाई बहुत से बच्चे को फुल मार्क्स नहीं मिलता है क्योंकि वो प्रॉपर पॉइंट्स नहीं लिखते हैं. बोथ लेफ्ट हैंड साइड, बोथ द पॉइंट शुड बी करेक्ट. लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट कॉलम में आपने जो लिखा है, राइट कॉलम में जो आपने लिखा है डिस्टिंक्शन पॉइंट दिया हुआ है, दोनों आंसर करेक्ट होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है या दूसरा करेक्ट है एक रॉन्ग है. इस केस में दोनों को मार्क्स नहीं मिलते हैं. एंड वन मोर थिंग, हियर यू हैव टू राइट 4 point in each column. Please mark my word, important. 4 marks in each column. तो सपोज मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर का डिस्टिंक्शन पॉइंट आपको बोला गया है तो आपके 4 पॉइंट्स मॉलिक्युलरिटी में होने चाहिए और 4 पॉइंट ऑर्डर में होना चाहिए, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. ये मत समझना कि आपने 2 पॉइंट मॉलिक्युलरिटी के लिए लिखा और 2 मार्क्स ऑर्डर के लिए लिखा और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं, आपको उस केस में 1 मार्क्स मिलेगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके,
Let me give you the clarity. If we have the distinction point like this, you have to write 4.1 2 3 4 on the left column and 1 2 3 4 in the right column. Then only you will be getting 2 marks. Then only you will be getting 2 marks. Please mark this word, very important. Are you getting me? So total you have to write 8 points. लेफ्ट और राइट को पूरा मिलाकर देखो, आप 8 पॉइंट लिख रहे हो और आपको 2 मार्क्स मिल रहा है. ठीक है. सो डिस्टिंक्शन पॉइंट क्लियर हो गया. देखिए, आप कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 2 ही पॉइंट लिखते हैं. वो स्टेट बोर्ड के नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं है, वो आईवी बोर्ड के हैं, तो उनको नहीं पता कि पेपर कैसे लिखना है. सो मार्किंग स्कीम आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को बूस्ट करने में. ठीक है स्टूडेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट, कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द प्रॉपर कंडीशन विल गिव यू फुल मार्क. कई बार स्टूडेंट खाली रिएक्शन लिखता है बट उसका जो बैलेंस्ड होता है ना, इनबैलेंस्ड, भाई केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट ही नहीं होता, बैलेंस्ड ही नहीं होता. या कई बार रिएक्शन लिखते हो बट आप कंडीशन नहीं लिखते हो, तो उसमें आपके मार्क्स कट होते हैं. तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो वह बैलेंस हो और कंडीशंस लिखा हो. नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट द एग्जाम्पल इफ इट इज आस्क्ड. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन सो एंड सो एंड राइट इट्स टू एग्जाम्पल और राइट टू यूजेस. तो आपको वो लिखना होगा. पूरे प्रॉपर क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए एंड देन यू फ्रेम योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, रीराइट द केमिकल रिएक्शन if it is asked. Rewrite the chemical reaction if it is asked. This means what? This means some chemical reaction is given and they didn't ask to identify A, B, C. You have to rewrite the chemical reaction. So in rewriting chemical reaction, you have to rewrite the entire chemical reaction again. Okay. Now for rewriting, for example या balanced chemical equation distinction, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि भाई एक पेपर प्रॉपरली लिखते कैसे हैं. सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन पेपर एंड आई विल नॉट आस्क यू टू राइट. ओके, आई विल बी सॉल्विंग दैट पेपर ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ओके, क्वेश्चन पेपर और आंसर मैं प्रॉपर आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे लिखें. ओके, सो वी विल कम टू दैट पॉइंट. ओके, वी विल कम टू दैट वीडियो लेटर. नाउ हियर 2 numerical type question will be there. Okay, moving to the next, for essay 2. In essay 2 अगर बड़े क्वेश्चंस आए तो भाई मिनिमम 6 पॉइंट्स होने चाहिए, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. 3 मार्क मिलेंगे. राइट एग्जाम्पल वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. जब आप डायग्राम बना रहे हो तो कम से कम 4 लेबलिंग देना होगा आपको. मिनिमम 4 लेबलिंग देना होगा. ठीक है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा लेबलिंग दे सको आप उतना दे दो, बट नहीं है उतना लेबलिंग तो कम से कम 4 लेबलिंग आपको देना होगा. राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. ओके, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो केमिकल रिएक्शन के नीचे आपको रिएक्टेंट का नाम लिखना है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है, कंडीशंस लिखने हैं एरो पे. सो ऑल दैट मस्ट बी रिटन. सो राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अंडर द केमिकल रिएक्शन. ओके, व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी डेरिवेशन तो प्रॉपर उसके जो स्टेप्स हैं आप पूरे स्टेप्स लिखोगे. टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं आप वही स्टेप्स लिखोगे. यू विल नॉट फॉलो एनी अदर स्टेप अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स. कई बार आप किसी क्लासेस में जाते हो या ट्यूशन में जाते हो, वहाँ पे कुछ अलग तरीका बताया जाता है डेरिवेशन लिखने का. स्टूडेंट, डू नॉट फॉलो एनी अदर स्टेप. एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक को देखो क्या स्टेप्स दिए हुए हैं, नहीं तो आपके मार्क्स लूज होंगे. फिर बाद में मुझे बोलना नहीं कि सर ने बताया नहीं. ठीक है. कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विथ कंडीशन. तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीट. कई बार आपने प्रोडक्ट लिखा, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, तो विच इज़ रॉन्ग. मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं है. बाय प्रोडक्ट भी लिखना है. उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है. प्रॉपर कंडीशंस लिखने हैं एरो पे, टेम्परेचर, कैटलिस्ट.
all that is very very important. ठीक है? And here again two numerical will be there in essay 2. I hope we are very clear with essay 1 and essay 2. मार्किंग स्कीम फॉर एलए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. एलए में आप सबसे पहले ये देखना कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता. ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता. उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछ लिए, या 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, या 4+1, है ना. ये पैटर्न होगा टोटल 4 मार्क्स के. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो एलए है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट. 1 2 3 4 5, so we have total 5 question and you have to attempt how many? You have to attempt any 3 out of 5. ठीक है. तो सपोज आपने कोई क्वेश्चन ले लिया, तो उसमें लेट्स से क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3030. तो क्वेश्चन नंबर 30 ए था, क्वेश्चन नंबर 30 बी था, क्वेश्चन नंबर 30 सी था. तो जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ओके, ए कितने मार्क्स का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बी कितने मार्क का है, 1, सी कितने मार्क का है, 1. तो ऐसा हो सकता है. या फिर आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है या 2 ही सब पार्ट दिया हुआ है, ए एंड बी. सो इट मे बी लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर जो 1 है मतलब ए 2 मार्क्स का है, सॉरी बी 2 मार्क्स का तो नहीं हो सकता, 3 मार्क्स का तो नहीं हो सकता, 2 मार्क्स का ज़रूर हो सकता है. सो 2+2 सिस्टम हो जाएगा, या 3+1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. Sorry, here you can see your question may be either 2+2 or 3+1, so that gives you 4 marks in each question. Okay, so what other pointers for marking scheme for long answer? तो लॉन्ग आंसर का जो नेक्स्ट है भाई, सभी पॉइंटर्स जैसा हमने essay 1 और essay 2 में देखा, वो पॉइंटर्स सेम है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए. And one numerical type question will be there in each sub question, that is for 2 mark. One numerical type question will come in each sub question. In each sub question for how many marks? 2 marks. So this is important. Okay, so here we are completing the marking scheme. Okay, I have added few more things, that is important point for MCQs, then important point for VSA. Okay, so what are important points? So we have completed the major part of this video for this moderator session. So important pointers, MCQs, you have when you will be attending, it should be one attempt. आप जो भी आंसर लिखोगे वो सीक्वेंस में लिखना है. जंबल मत करो अपने क्वेश्चंस और आंसर को, एक ही ऑर्डर में लिखो. Always attempt all MCQs because no negative markings over here. Then left space. Okay, इफ़ यू फील अरे कोई आंसर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो, एट द एंड लिख देना आप. ठीक है, सो ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. एंड व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल सेपरेटली एंड राइट द आंसर इन द प्रॉपर, है ना, इन द सीक्वेंस, इन द ऑप्शन इन द सीक्वेंस. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई MCQ सॉल्व किया तो वो उसका कैलकुलेशन वगैरह एकदम एंड में सॉल्व कीजिए. इधर लास्ट पेज में एक रफ पेज बना लीजिए, वहीं पे आप सॉल्व कर दीजिए. ओके, एंड यू हैव टू ओनली राइट द करेक्ट आंसर बिकॉज कैलकुलेशन आपको MCQs का दिखाना नहीं होता है, आपका आंसर आना चाहिए, दैट्स इट. Okay, so important pointer for MCQs is 1 marks for the correct answer, 0 marks for the incorrect answer, no negative marking and no half marks is awarded for MCQs, which we have already seen. Coming to the next student, I hope you have understood the important pointers. कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, नहीं है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना. ठीक है. Coming to the next important pointers for VSA. अननेसेसरीली डू नॉट एलिब्रेट और आंसर. मैंने बताया भाई एक क्वेश्चन एक ही मार्क का है, सो डू नॉट एलिब्रेट योर आंसर. जितना पूछा है उतना क्रिस्प और शॉर्ट में आंसर लिख दो. भाई डेफिनेशन पूछा है, लॉस पूछा है, तो आप अपना ओन वर्ड्स उसमें मत डालना. टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है
टीबी इस टेक्स्ट बुक ओनली। आप अपने ओन स्टेटमेंट वहाँ पे लाइंस नहीं डालोगे, जो टीबी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप वही ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है भाई 2 ही यूजर्स लिखो तो आप 2 ही लिखो, 2 एप्लीकेशन बोला है तो 2 ही लिखो, 2 फंक्शन पूछा गया है, राइट, गिव टू फंक्शन ऑफ सॉल्व ब्रिज, तो आप 2 ही फंक्शन लिखो, ठीक है। अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को मत लिखो। हाँ, अगर आपको लिखना है तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपने लिखते लिखते कोई गलती करी और उसमें आपके मार्क्स कट रहे हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने तरफ से ऐड ऑन कर दो, बट डू नॉट elaborate योर आंसर। ओके, हियर यू हैव टू शो द कैलकुलेशन व्हेन यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, आपका सामने होना चाहिए। तो आप इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट लास्ट पेज में, रफ पेज में सॉल्व नहीं करोगे। और जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो प्रॉपर बनाओ, पेंसिल से बनाओ, जो पेंसिल है वो प्रॉपर होना चाहिए भाई, पॉइंटेड पेंसिल बनाओ, है ना, पॉइंटेड पेंसिल और उससे बनाओ। ओके, एंड लेबल द डायग्राम प्रॉपरली विद द प्रॉपर पॉइंटर, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लेबलिंग किया बट पॉइंटर्स कहीं अलग ही जा रहा है। जैसे SHE का डायग्राम बनाने आया, SHE इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो प्रॉपर पॉइंटर देखो आपके टेक्स्ट बुक में, प्रॉपर जूम करके देखो भाई कि किधर क्या पॉइंट किया गया, उसके हिसाब से आप बनाइए। मूविंग टू द नेक्स्ट, भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे इसके। सो 1 marks फॉर द करेक्ट, 0 marks फॉर द रॉन्ग। ओके, नो हाफ मार्क्स हियर, ऑल्सो नो हाफ मार्क्स। And suppose if the question is written write 2 uses or 2 application of some question और आपने एक ही लिखा है, right, like for example write give 2 uses of helium और आपको एक ही यूजेस आता है, आपने एक ही यूजेस लिखा है, ठीक है, तो आपको 0 marks मिलेगा, हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया नो हाफ मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर दिस सब क्वेश्चन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर essay 1? 4 पॉइंट होना चाहिए, हर एक पॉइंट का हाफ मार्क्स, डायग्राम प्रॉपर बनाइए, न्यूमेरिकल 3 से 4 स्टेप वाले आएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आपको दिखाना होगा, वहीं पे दिखाना होगा, लॉग टेबल से नहीं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आप दिखाइए। और जब आप डिस्टिंक्शन पॉइंट लिख रहे हो तो हर एक कॉलम में 4-4 पॉइंट होने चाहिए, टोटल 8 पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो हर एक पॉइंट को हाफ मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आया डिफाइन दिस एंड दैट, लाइक फॉर एग्जांपल डिफाइन isothermal process and define optical activity, 2 अलग क्वेश्चन आ गए, तो आपने एक का डेफिनेशन लिखा तो 1 mark, दूसरे का डेफिनेशन लिखा तो 1 mark। नेक्स्ट, गिव 2 uses of A and B each, तो आप each बोला है, like for example 2 uses of helium and 2 uses of argon, तो आपने टोटल कितना यूज लिखा, 4 यूज लिखा ना, हीलियम का 2 और आर्गन का 2, टोटल 4 यूज लिखा, तो हर एक को आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। वेन एवर यू आर राइटिंग एनी केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एंड रिटन क्लियरली। कई बार रिएक्शन आप लिखते हो, आप ही को समझ में आता है भाई आपने क्या लिखा है, साइंटिस्ट वाला राइटिंग में आप लिखते हो, ठीक है, तो यू हैव टू maintain your writing properly when you are writing a chemical reaction, when you are making bonds especially, ठीक है। next, you will be getting half marks or 1.5 marks or complete 2 marks, partial marks is awarded। ये जो लास्ट वाले पॉइंट का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे अगर आपका आंसर आधा करेक्ट है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा, नहीं तो 1.5 मिल जाएंगे, और आपका पूरा करेक्ट है 1.5 और पूरा करेक्ट है तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, सो कोई रिएक्शन है, रिएजेंट है, तो आप केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट है तो उसके नीचे उसका नाम लिखो, रिएजेंट है तो नाम लिखो, प्रॉपर कंडीशन लिखो, कैटलिस्ट लिखो एरो पे, प्रोडक्ट के नीचे उसका नाम लिखिए, कोई साइड प्रोडक्ट है तो उसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बेटा ये महाराष्ट्र बोर्ड है और आपको पेपर इसी तरीके से लिखना होगा, एंड दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग एनी पेपर। मूविंग टू द नेक्स्ट, important pointers for SA2. Okay, in SA2 you have to write minimum 6 points for 3 marks। डायग्राम जहाँ जहाँ पूछा गया है बनाइए,
न्यूमेरिकल के पॉइंटर्स मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिए थे ऊपर वाले स्लाइड में कि कैसे न्यूमेरिकल्स आपको लिखना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूले लिखना है, टू फाइंड लिखना है, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन, conclusion means correct answer and proper unit. So all that point which I have done in the above, that same is repeated over here. You have to, when you will write the reaction, name reaction, तो complete chemical reaction लिखो, by product लिखो, product लिखो, उनके नीचे उन reactant और product का नाम लिखो, conditions लिखो arrow पे, then only you will get full marks. Okay, so write the complete chemical reaction. Okay, if the reaction is asked identify A, B and C, तो properly A, B, C इसको proper identify करो. Suppose आपने A और B identify किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. आपने सिर्फ A आइडेंटिफाई किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. A, B, C तीनों आइडेंटिफाई कर लिए किसी रिएक्शन में तो आपको 3 मार्क मिलेंगे. सपोज आपने A आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं किया, B और C आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. सपोज आपने कुछ नहीं आइडेंटिफाई किया, खाली C आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, बट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे. ओके, यू विल गेट मार्क्स. कमिंग टू द नेक्स्ट, डेरिवेशंस. Okay, whenever you're having derivation, if diagram is required, draw diagram, write consideration point, write all the steps, standard step which is given, conclusion is given. So whatever the format which is given in your textbook, you have to follow the entire format. कई बार derivation में लिखा होता है from by using ideal gas equation or by using first law of thermodynamic, तो वो आपको लिखना जरूरी है. ठीक है, that is what called as standard steps. whenever you are writing any chemical reaction mechanism, तो आपको proper arrow से बताना पड़ेगा reaction का mechanism, proper description देना होगा. draw all the arrow, draw the LP of electron, lone pair of electron. okay, तो आपको properly mechanism बताना होगा. and here also you will be getting half marks or 1 marks or 1.5 marks, 2 marks or 2.5 marks or 3 marks. 3 से ज़्यादा तो नहीं मिल सकते क्योंकि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, SA2 में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है ना. तो मिनिमम अगर आपका आंसर थोड़ा भी करेक्ट है तो आपको हाफ दिया जाएगा, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक है तो आपको बढ़ाकर जो भी है जितना है मार्क्स मिलेगा. तो एज आई हैव सेड, हाफ मार्क्स से स्टार्ट होता है, 3 मार्क्स पे एंड होता है. अगर बिल्कुल नहीं लिखा, पूरा रॉन्ग है, 0. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर LA, लॉन्ग आंसर. सो लॉन्ग आंसर का भी जो पॉइंटर्स है वो सेम SA1 और SA2 जैसा ही है. दैट यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर, है ना, इट कैन बी 1 कंप्लीट क्वेश्चन. ओके, फॉर 4 मार्क्स इट कैन बी 1 कंप्लीट क्वेश्चन. तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपने प्रॉपर पूरा अटेम्प्ट किया है, ABCD प्रॉपर अटेम्प्ट किया है तो 4 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे. कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2+2 के क्वेश्चंस आते हैं या 3+1 के भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, only 3 answer of maximum marks will be, only 3 answer, the maximum marks will be considered. I mean to say 3 marks for maximum answer will be considered. I mean to say we have total 5, how many questions, 5 question. Question number 27, 28, 29, 30 and 31. सपोज आपने 5 के पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. ये 27, 28, 29, 30, 31 क्या है मालूम है, क्वेश्चन नंबर है. आप पेपर फॉर्मेट ऊपर का सैम्पल पेपर देखिए तो आपको समझ में आएगा. ये क्या है, 27 to 31 क्वेश्चन नंबर है. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपने अटेम्प्ट किया 27, उसमें मिलते हैं आपको 3 मार्क, इसमें मिलते हैं 2 मार्क, इसमें मिलते हैं फिर से 3, इसमें मिलते हैं 2 और इसमें मिलते हैं 4. सपोज आपने पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट कर लिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम था. ठीक है ना, पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट किए और आपको ये मार्क्स मिलते हैं. तो स्टूडेंट, इसमें से जो बेस्ट मार्क्स है वही सेलेक्ट किए जाएंगे. जैसे 4 मार्क्स को पहले सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ये 3 को और ये वाले 3 को सेलेक्ट किया जाएगा. इसको और इसको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे. तो जो बेस्ट मार्क्स है वही सेलेक्ट किया जाता है और ये एप्लीकेबल है सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए. ओके, सेक्शन बी, सी और डी ये सभी सेक्शन के लिए, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन ए, बिकॉज सेक्शन ए ऑल द क्वेश्चंस आर मैंडेटरी.
बट फॉर सेक्शन बी, सी एंड डी अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो जो मैक्सिमम मार्क्स जिस भी सेक्शन में आपको मिल रहा है उसी को मार्क्स दिया जाएगा. ओके, यू कैन रैंडमली यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस इफ़ यू फील कि आपके पास टाइम है और आप बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है. ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे बताया कि भाई जो मैक्सिमम जहाँ पे मार्क्स मिला आपको वही कंसिडर किया जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट, मोस्टली क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम नॉलेज बेसिस. यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो नॉलेज बेसिस और एप्लीकेशन बेसिस से क्वेश्चंस आते हैं. न्यूमेरिकल हर एक सेक्शन में होता है. क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 सभी में, 31 में न्यूमेरिकल होता है. कुछ लोग खुश हो गए थैंक यू देखकर. हाँ, स्टेप्स कैरीज मार्क्स इन न्यूमेरिकल. जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, फॉर्मूले लिखो, सब्स्टिट्यूशन लिखो, कैलकुलेशन लिखो, उसका आंसर लिखो, है ना, प्रॉपर यूनिट लिखो, तो हर एक स्टेप्स को आपको मार्क्स मिलेगा. एंड हियर you can elaborate your answer. You can elaborate your answer to get full marks. ठीक है. So student, I hope you have understood, okay, whatever the following pointers we have done in this moderator session. Okay, if I'll get the time I will be making one more video, okay, that how to write a paper. Okay, and in that video I will show you that I will not write paper, already the paper will be written. नहीं तो ऐसा बोलोगे भाई 3 घंटे का वीडियो बनाओगे सर 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए. नहीं बेटा, आपको ऑलरेडी एक पेपर मैं लिखकर प्रॉपरली प्रेजेंट करके बताऊंगा और उसमें बताऊंगा मार्किंग स्कीम कि अगर आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा तो आपको कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. ओके, सो वी विल बी learning more better. Okay, only if I'll get the time, so I'll make a video. Okay, so thank you so much. I've done with my moderator session. I hope you have enjoyed, you have understood, okay, that how will you go, especially the marking scheme, the time management, okay, which I have made for you. Okay, I hope you have enjoyed. Acha student, one more thing, if you go to my channel you can see many videos of chemistry practical which we have done in our college. Okay, so go to that video also, so you will come to know ki how to do better in your practical, because we have done practical many days back. तो एक बार उसे रिवाइज कर लो थोड़ा सा. ठीक है, एक बार वो रिकैप कर लो तो फ्रेश हो जाएगा. So please check that video also in my channel. So for that you have to just go to my channel and you can see. Okay student,